Good afternoon, everyone. Myself, Azam Sharma from Chandigarh Polytechnic College in Civil Engineering Department. So, our today's topic is road survey. So, as we all know, whenever we need to construct a road, there has to be a certain survey which we need to conduct first. So, the highway location says, so whenever we need to locate any highway or locate any road, so there are certain data which we need to collect before constructing that road. So that data may include like topographical status, location, what will be the design characteristics, geometric characteristics, and different categories like lakes, वगैरह, and any kind of geographical structure which is already present there that we need to do, that we need to check it out. So the survey of highway is basically divided into three categories. So these three categories are reconnaissance survey, preliminary, and location survey. So in the reconnaissance survey, it is the most and first step of a survey which we need to do before constructing a road or designing a road. So preliminary and a rapid examination of a region with reference to its natural features means whatever the natural features you have in that locality, whether it is like hilly area, plain area, ground, or whatever kind of geographical status that ground has, that we need to look it out, that we need to check it out without the help of any instrument. So it is saying, so we don't need to use any kind of instrument here. So it is just a Reiki, that we normal language we call it as a Reiki. So a normal or a military language. So Reiki means that you just need to inspect that area. So in the inspection part, there are certain data which need to be recorded out. So on this data, on this reconnaissance data, we'll be checking out what are the suitable alignments which can adopt for our highway or a road. So when the area is sufficiently vast, so it says आपका जो area है, when it is sufficiently vast or large enough so that it cannot be covered in a normal vehicle, so we can adopt an aerial survey also, means with the help of any drones or any kind of aerial structure like with a helicopter, or means any kind of aerial data we can find it out. So that recording will be done, means after the portion is already completed, means if you have gone through this survey, ठीक है, आपको simply note down करना है what are the various characteristics of data which it has. So like this. So in this image, like it is saying, it is an aerial survey. So whenever your area is quite vast, so और काफी ज़्यादा distraction or obstruction है आपके उस area में, like that is a hilly area and it is not approachable. So उन cases में we can adopt this aerial survey, or with the help of a drone we can footage this area, footage this or record this video from any aerial point of view, so that it will be easier for us to collect this data. So आपको यहाँ पे easy हो जाएगा. So जो भी आपको यहाँ से data चाहिए, you can easily note it down and point it out. So what are the various objects of a reconnaissance survey? So basically, it determines the suitability of each alternative road alignment marked on a topographical map. तो जो भी आपके alternative routes available आपको होंगे, so it can be marked with this topographical map which we have already prepared by this reconnaissance survey. So whatever the topographical map you will be constructing or designing, it will be including all kinds of possible data, all kinds of possible routes which you can adopt for our road survey. Because अभी वहाँ पे कोई road बनी नहीं है या अभी कोई बनने वाली है, so you can adopt or suitable कोई भी route आपको लग रहा है, means यहाँ पे आपको obstruction ज़्यादा नहीं आएगी, means you don't have to go through any kind of difficulty for this alternate route. So you will be finding out 2 or 3 routes or proposing 3 or 4 routes for one single route. तो single road बनाने के लिए आप 2 or 3 alternate routes design कर सकते हो, ताकि आपको various parameters उनके सबके पता लग जाए, so that it will be easier for us to decide whichever route to follow. Although हमारी जो first priority है, that priority is our आपका जो road path है, that has to be straight. Means the shorter the path will be, the lesser the cost it will be. So जितनी कम आपकी length रहेगी आपकी road structure की, उतने ही cost कम लगेगी. So we try to adopt कि आपका जो fastest route रहे वो आपका straight path ही रहे. So according to that, if it is not sometimes possible for practically, because straight path में आपके पास काफी difficulty आ सकती है, means if there is any like temple है या कोई any kind of obstruction है जिसको आप destroy नहीं कर सकते, destruct नहीं कर सकते हो, so उन केस में we need to adopt our suitable manner कि आपको कोई और route final करना पड़ेगा.
So second object says it also sets any improvement in rule alignment such as deviation of marked alignment. So means जो भी आपकी एक already present कोई भी alignment है तो उसका कोई भी improved route final कर सकते हो. So you can also set any improved route. अगर आपने कोई final किया है या already कोई बन रखी है route तो उसका आप एक alternate route भी बना सकते हो. So it also helps to locate new suitable alignment on the basis of preliminary inspection of the region. तो जो भी अपने preliminary inspection अपने region की है, जो इस recurrence survey में आपने करी है, so in this recurrence survey, so you can help to locate new suitable alignment. कोई भी new alignment आपको बनानी है, so you can easily suggest it out also. So it helps in drafting a general report and working out estimate of probable cost of road projects. So that means कि जो भी आपकी report अपने जो बनाई है उसमें आपको एक approximate cost आपको पता लग सकती है. So you can estimate that kind of length आपको पता लग जाएगी कितनी है, ठीक है, kind of material which is already it has, so it will be also noted down. So depending on these all parameters like material, location, difficulties, so you can just estimate an amount of it कि आपकी कितना approximate आपको खर्चा आएगा. So you can check it out in the general report also. Then the most important is information which need to be collected. So जब आप recurrence survey कर रहे हो तो there are certain important information और important point जो आपको mind में रखने पड़ेंगे, means जो आपको note down करने ही करने हैं, that is mandatory. So it says the terminal point and approximate length of a proposed highway. तो जो भी आपके terminal point है means origin point से destination point. Like suppose if you have any origin point here, means आपने यहाँ से road start करनी है and there is a certain point which ends to be here. ठीक है, so in these terminal data you will be finalizing out various routes of it. तो आपको various routes आपको final करनी है. अब ये route आपका straight भी हो सकता है, so it could be straight route also. It could be अगर यहाँ पे कोई obstruction है, so आप इसको एक curve देके इसको align भी कर सकते हो. So you will be finding out various terminal point of it. The first point हमारा है recurrence का, आपको terminal point कहाँ से लेके कहाँ तक आपको road बनानी है और उनके बीच की approximate length. You are not measuring out that like accurately, but simply you need to just check it out कि आपकी approximate length कितनी है उस route की. Then it says type of soil along the route inspected by field and identification test. तो जो भी आपके field identification test होते हैं means उसकी visualization से, touch से, ठीक है, you can check it out कि what kind of soil it has. आपका जो soil का structure है वो कैसा है, either it is a clay soil है, यहाँ पे already कोई building बन रखी है वहाँ पे, ठीक है, so what kind of soil structure it has, so that will be also helpful for deciding on material also. तो जिस टाइप की आपकी सॉइल रहेगी, सॉइल के डिपेंड के अकॉर्डिंगली आप रोड का जो डिजाइन पैरामीटर है वो डिसाइड करोगे. सो आपको अप्रोक्सीमेट उसकी टाइप ऑफ सॉइल भी पता करनी, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इट कंटेन्स. देन अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड देयर सोर्सेज. तो जो भी वहाँ पे अवेलेबल लोकल मटेरियल है विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, सो यू नीड टू नोट इट डाउन आल्सो. अगर वहाँ पे कोई क्वेरी है, स्टोन क्वेरी है, सो दैट यू नीड टू आल्सो नोट इट डाउन. तो वहां पे आप नोट डाउन करोगे, यस इट हैज अ स्टोन कैपेबिलिटी. अगर कोई बिटुमेन का सोर्स है वहां पे, यू कैन आल्सो नोट इट डाउन. जैसे आपकी लेक से जो बिटुमेन निकलती है, यू कैन आल्सो नोट इट डाउन. सो जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल वहां पे है वो आप नोट डाउन कर सकते हो. सो इट विल बी आल्सो हेल्पफुल. क्या दीजिए आपको जो फाइनल जब आप रोड कंस्ट्रक्ट करोगे तब आपको मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिफिकल्टी ना हो. देन इट सेज सोर्स ऑफ वाटर. सो व्हाट काइंड ऑफ सोर्स यू हैव फॉर द वाटर, मींस आपको रोड कंस्ट्रक्शन के लिए वाटर चाहिए होगा. So what kind of source you have, either it is वहाँ पे underground water table कितना किस लेवल पे है, ठीक है, वो approximate आप जो बोरहोल कहीं पे हो रखे होंगे, ट्यूबवेल कहीं पे होगा, ठीक है, उस एरिया में, रीजन में. सो यू कैन आपको एक डाटा पता लग जाएगा कि आपका वाटर टेबल यहाँ पे लाई कर रहा है और वहाँ पे आपका सोर्स क्या है, मींस पानी वहां से कहाँ से आ रहा है, either it is coming from a river, canal, कहाँ से पानी आपके पास इजिली मिल रहा है वहाँ. Then is drainage facility in the region. So what kind of drainage facility it already have, like आपके वहाँ पे drainage pipe already पड़ रखी है, अगर if there is any reason, ठीक है, constructed है, already constructed है, तो it will be easier for you. Otherwise आपको दोबारा से construct करनी पड़ेगी new end से. So then traffic condition and availability of transportation facility. तो traffic condition already वहाँ पे कैसी है, means कितनी strength है, उसकी population कितनी है village की जो उस road के along side आएंगे, या district की strength कितनी है, तो what kind of population और काइंड ऑफ आपको ट्रैफिक के अप्रोक्सीमेट डाटा फाइंड आउट करना है कि इतनी पॉपुलेशन के पास अप्रोक्सीमेट इतने व्हीकल्स हैं, ठीक है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है या आपकी विलेजेस हैं, उसके डिपेंडिंगली आप अपने ट्रैफिक कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हो. देन इज जियोग्राफिकल फीचर ऑफ द एरिया सच एज रिवर्स, लेक्स, वैली, पॉन्ड्स. सो मींस ये सारे जियोग्राफिकल फीचर्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे.
मींस आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि कौन सा कितनी रिवर्स या वैली या किस एरिया से कैनाल आपकी जा रही है, सो दैट यू आल्सो नोट इट डाउन, दैट विल बी आल्सो हेल्पफुल इन डिजाइनिंग योर स्ट्रक्चर। क्योंकि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन है आपकी रोड को बनाने के लिए, तो इन ऑब्स्ट्रक्शन को या तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, मींस अपने अपने रोड के अलाइनमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमको इनको कोई क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स या कोई भी फ्लाईओवर, ठीक है, या ब्रिज यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। So the number of river crossing and determination of suitable site for bridge or culvert construction. So like I said कि if there is not possibility of any diverting or alignment, तो उस केसेस में जो अगर आपको ब्रिज बनाना पड़ रहा है, so what kind of suitable site for that bridge, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं कि जितना आपका नैरोअर पोर्शन रहेगा रिवर का, वहीं पे हम अपने ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करें। इफ देर इज एनी बेंड इन द रिवर, तो उस एरिया में वी आर नॉट प्रेफरिंग अवर ब्रिजेस, तो मोस्टली हम स्टेट पाथ पे, रिवर का जो स्टेट पाथ है उसी पे हम फॉलो करते हैं और वहीं पे हम ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। So then types of gradient, their approximate values and nature and length of curves to be provided along the route. तो जो भी आपको ग्रेडियंट कैसा डालना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, मींस हाइट कैसी है, फिलिंग कितनी होनी चाहिए या होगी वहां पे, अप्रोक्सीमेट आप वहां पे पता कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द फीचर कैसा है। प्लेन एरिया तो वहां पे ज्यादा आपको ग्रेडियंट में डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर हिली एरिया या कोई ज्यादा काफी ज्यादा एक्सप्रेशन फैली एरिया, तो उसके एरिया में, उस केस में आपको ग्रेडियंट का मेजरली कंसर्न रखना पड़ेगा। सो अगर कर्व प्रोवाइड करनी पड़ी है तो कितनी कर्व की कौन सा पाथ उसको फॉलो करोगे। देन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सो दैट वी आर आल्सो कैलकुलेटिंग इन ट्रैफिक कैलकुलेशन में भी आप ये ऑलरेडी करोगे, ठीक है। डेंसिटी पॉपुलेशन की जो उस रोड को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ पर्पस यू हैव फॉर दैट रोड, आइदर इट इज अ नेशनल हाईवे है, विलेज रोड है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, तो कैसी रोड है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपकी पॉपुलेशन और ट्रैफिक आपकी वेरी करेंगे। After this all collection of data, we need to do a second survey, that is your preliminary survey. So what is the preliminary survey? It is basically an accurate survey with the instrument. So now which whatever routes you have finalized, जो भी आपने propose किए हैं routes को, like आपने एक point से A point to B point तक आपने terminal point बनाया था. So in these 2 points you have proposed 2 or 3 routes, or suppose 3 routes आपने finalize किए. So in the 3 routes में you will calculating out various technical features of it, like what kind of जो भी अपने levels थे, ठीक है, excavation data, ठीक है, various, अब आपको वो सारे डिटेल में चलना है। So now you will be using that instrument, जैसे आपका theodolite, auto levels, ठीक है, labeling staffs, ठीक है, so these compass, so these all data will be noting down with these help of instruments in a survey. So it says accurate survey conducted along the desirable routes as recommended by reconnaissance survey in order to obtain a sufficient data. तो अब आपको उन जो भी अपने रूट्स प्रपोज किए हैं उनका जो डाटा है वो फाइनल सफिशिएंट डाटा आपको कलेक्ट करना है, जो रोड बनाने के लिए सफिशिएंट रहेगा। फॉर फाइनल लोकेशन सर्वे इज टर्म एज प्रीलिमिनरी सर्वे, मींस उसको आगे फाइनलाइज करने के लिए। So the preliminary survey consists in running accurate traverse line known as PLAN. तो basically you will be conducting out various traverse, ठीक है। ट्रावर्स आप बनाओगे, ओपन ट्रावर्स हम बनाएंगे रोड के केस में, तो ओपन ट्रावर्स के बीच में जो भी उसमें आपको ऑफसेट मिल रहे हैं, आइदर देयर इज एनी परमानेंट स्ट्रक्चर और लेक और रिवर और कैनाल, whatever kind of structures you have which is occurring in that traverse line, तो उसके alongside आपको उसको नोट डाउन करते रहोगे with the help of plane table, compass, steel tape and chain. So with the length as well as their angles also. So that will be noting down. So tachometer and theodolite are also used for various data. Then is object of preliminary survey. So what is my object of doing this survey? So the main objective is to determine the location of horizontal line of proposed highway. तो आपको जो horizontal line आपने जो propose किए हैं उनको decide करना, determine करना, to survey the recommended routes after reconnaissance with due consideration to grade. So basically whatever the routes which you have already proposed in a reconnaissance survey, तो उनका basically अब यहाँ पे हम उसको propose करें जो finalized route कौन सा रहेगा। Means अब 2-3 routes तो बना नहीं सकते हो, तो उनमें से जो भी रूट आपको फाइनल करेगा वो उसमें आपका डाटा नोट डाउन रखोगे आप। So to collect necessary information about general and physical features of the area in detail such as general topography. तो अब इस केस में जो भी आपके पास नेसेसरी डाटा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो आप इसमें नोट डाउन करोगे, आइदर इट इज अ जनरल और फिजिकल फीचर आपके स्ट्रक्चर एरिया के, रीजन के, जैसे आपकी जनरल टोपोग्राफी, सॉइल, इसमें डिटेलिंग आ जाएगी सॉइल की, वाटर, ड्रेनेज कंडीशन विच अफेक्ट द फाइनल लोकेशन एंड डिजाइन ऑफ हाईवे। तो ये सारी कंडीशन आपकी डिसाइड करेंगे आपको रोड वहां पे बनानी है या नहीं बनानी है। Then is to compare the various alternative proposal in the view of a requirement of a good road alignment.
तो जो भी आपके पास रूट्स आपने जो प्रपोज किए थे रेकॉग्नाइज में, उनका सबके आपके पास डाटा आ जाएगा। सो आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द डाटा इन अ प्रीलिमिनरी सर्वे, तो जब आप ये सर्वे कर लोगे प्रीलिमिनरी, उसके बाद आपके पास वेरियस हर एक रूट का एक वेरियस डाटा आ जाएगा। उसमें आप उसको कॉस्ट वेरिएशन, ठीक है, और एफिशिएंसी ऑफ दैट रोड, ठीक है, मींस वो यूजर्स के लिए एफिशिएंट रहेगी, ठीक है, सेफ रहेगी, साउंड रहेगी, सो दैट विल बी नोटेड डाउन, और उसमें हम इन सभी रूट्स को कंपेयर करेंगे with reference to their cost, with reference to their material, construction, any kind of obstruction we have. Then is to prepare a preliminary survey map helpful in the final location of the center line of proposed highway. तो हम इसमें एक फाइनल प्रीलिमिनरी सर्वे मैप फाइनल करेंगे, बनाएंगे इसको। तो जो हम वो लोकेशन सर्वे में, जो इसके बाद आपका जो सर्वे आएगा उसमें हेल्प आउट करेगा। बेसिकली हमको एक सेंटर लाइन डिसाइड करनी पड़ेगी एक फाइनल रूट की, वो हमारी इस सर्वे में होगी, उसके बाद हमको लोकेशन सर्वे उसका करना पड़ेगा। So to work out the cost of alternative proposal by estimating quantities of earthwork and construction material. अब बेसिकली आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल, तो जो भी चीज आपके पास मटेरियल वहां पे अवेलेबल है या नहीं भी है, ठीक है, सो दैट यू विल बी नोटिंग डाउन कि कौन सा मटेरियल आपको चाहिए वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए और कौन सा आपके पास अवेलेबल है और किसकी आपको कॉस्ट कम पड़ेगी, ठीक है। सो दैट मींस आप मटेरियल की कॉस्ट एज वेल एज लेबर कॉस्ट, ठीक है, लेबर वैसे कहाँ पे एरिया, मशीनरी कॉस्ट, सो दीज ऑल डेटा यू विल बी फाइंडिंग डाउन एंड नोटिंग डाउन, और उसका एक कॉस्ट कंपैरिजन बना दो। सो दैट कॉस्ट कंपैरिजन विल हेल्प आउट इन डिसाइडिंग अवर फाइनल रूट। तो वो आपको कॉस्ट कंपैरिजन जो है वो आपको रूट को फाइनल करने के लिए डिसाइड रहेगा, बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिवली हम मोस्टली देखते हैं। देन टू फाइनलाइज द मोस्ट सुटेबल रूट इन फाइनल व्यू ऑफ ऑल कंसीडरेशन फ्रॉम द वेरियस, ठीक है। तो उसके बाद आपकी इस जो भी आपके पास डाटा आएगा उसके बाद हम उसको फाइनलाइज कर देंगे। तो जो भी 2 और 3 डाटाज में से 2 और 3 रूट्स में से whatever रूट्स which is finalized, ठीक है, वो यहाँ पे आप इन बेसिस के ऊपर फाइनल कर दोगे यहीं पे प्रीलिमिनरी सर्वे डेटा के बाद यू विल बी फाइनलिंग आउट योर वेरियस रूट, ठीक है। अगर 2 और 3 प्रपोज रूट से उसमें से कौन सा रूट आपने एक फाइनल टिक किया, मींस जिसमें आपकी कॉस्ट भी ठीक परसेंट पर भी इकोनॉमिकल, ठीक है, और आपके पास वेरियस फीचर्स भी ना, तो कोई डिफिकल्टी मिल रही है, सो दैट विल बी इजियर फॉर यू टू कंस्ट्रक्ट आल्सो। सो इसमें आपका आ जाएगा। सो टू कंडक्ट ऑफ प्रीलिमिनरी सर्वे, अब इसकी स्टेजेस हैं, तो स्टेजेस इंक्लूड्स एस्टैब्लिशिंग प्राइमरी ट्रैवर्स और पी लाइंस। तो बेसिकली लाइक आई सेड कि आपको पी लाइंस और ट्रैवर्स लाइन बनानी पड़ेगी। सो यू विल बी मेकिंग आउट ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स आपका बनेगा, ठीक है। सो ऑन दोस पी लाइन के बेसिस पे यू विल बी चेकिंग आउट वेदर what kind of offsets you have, what kind of obstructions you have, ठीक है, like any lake, pond, river, canal, ठीक है, building और permanent structure कोई है वहां पे, तो that you will be noting down in this traverse line, in this traverse also. Then is recording topographical feature, तो उसी टेबल पे, उसी शीट पे यू विल बी नोटिंग डाउन जो भी आपके पास टॉपोग्राफिकल फीचर्स हैं, ठीक है, जैसे आपकी कोई क्रॉप्स है, स्वैम्प्स एरिया, मार्शिस है, लेक है, स्ट्रीम्स, क्वेरीज, लैंडस्लाइड पॉसिबिलिटी, सो दीज ऑल पॉइंट आउट विल बी नोटिंग डाउन दीज टॉपोग्राफिकल फीचर्स। मींस अगर आप जो रोड बनाओगे वहां पे, ठीक है, वहां पे आपको कोई डिफिकल्टी तो नहीं आएगी, सॉइल कंडीशन वहां पे कैसी है, ठीक है, ड्रेनेज फैसिलिटी कैसी है वहां पे, कोई लेक है, कोई मार्शी एरिया तो नहीं है, मींस जहाँ पे आपको स्वैम्प्स एरिया मिल जाए जहाँ पे आपकी रोड सूटेबल ना रहे, ठीक है। सो दैट विल बी नोटिंग डाउन इन द टॉपोग्राफिकल फीचर्स में। देन कंडक्टिंग लेवलिंग वर्क, उसके बाद आपको लेवलिंग वर्क करना है, ठीक है। आफ्टर दिस टॉपोग्राफिकल फीचर्स डन, उसके बाद आप लेवल फाइंड आउट करोगे, मींस आपका जो नॉर्मल सरफेस लेवल कैसा है, रिड्यूस लेवल आप फाइंड आउट करोगे हर एक पॉइंट पे। आप चेनेज पॉइंट डिसाइड कर सकते हो, वेदर इट इज 30 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, कितना भी आपका चेनेज पॉइंट रहेगा, उनके बेसिस पे विद द हेल्प ऑफ वाटर लेवल एंड लेवलिंग स्टाफ यू विल बी नोटिंग डाउन व्हाटएवर द वेरियस अर्थ लेवल है, मींस इससे आपको पता लगेगा आपका अर्थ वर्क कितना होगा, आइदर वो कटिंग में बनेगी या फिलिंग में बनेगी आपकी जो रोड बननी है। देन इज कलेक्टिंग हाइड्रोलॉजिकल डाटा, उसके बाद आप हाइड्रोलॉजिकल डाटा भी कलेक्ट करोगे, मींस जो भी आपके ड्रेनेज है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे आपके पास जो डाटा मिलेगा, ठीक है, उसमें से आपको पता करना है कि आपका वाटर टेबल कितना है उस एरिया में, कहाँ तक लाई करता है, ठीक है। मैक्सिमम फ्लड लेवल भी आप चेक करोगे कि फ्लड कब आए थे, ठीक है, पिछले 10 ईयर्स का, 5 ईयर्स का डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उससे विल बी नोट डाउन आपको लेवल कितना रखना है रोड का, रेनफॉल कितनी होती है उस एरिया में, उसके अकॉर्डिंगली आप रोड को डिजाइन करोगे, ठीक है। उसका कैम्बर, उसका ज्योमेट्रिकल डिजाइन, फीचर्स, उसके टाइप ऑफ मटेरियल विच यू विल बी यूजिंग, वो सब इसके बेसिस के ऊपर डिसाइड होगा हाइड्रोलॉजिकल डाटा के ऊपर, ठीक है। मींस अगर रेनफॉल ज्यादा है तो आपको एक सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज करना पड़ेगा, फ्लड लेवल अगर आते हैं तो आपको रोड का लेवल थोड़ा हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज ऑल द डेटा विच विल बी कलेक्टिंग आउट फॉर आवर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इजीली। देन इज सॉइल इन्वेस्टिगेशन, इन डाटा कलेक्ट करने के बाद आपको सॉइल को इन्वेस्टिगेट भी करना है,
सो विल बी चेकिंग आउट द सॉइल आपको सैंपल लेने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ आपके फील्ड टेस्ट होंगे, सर्टेन विल बी और लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। दोनों टेस्ट आप करोगे एंड यू विल बी फाइंडिंग आउट द बेयरिंग कैपेसिटी एंड वेरियस फीचर्स ऑफ दैट सॉइल, कि सॉइल कैसी है, क्या प्रॉपर्टीज हैं सॉइल की, बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है सॉइल की वहां पे। सो दिस बोरहोल डाटा एंड ऑल द फीचर्स ऑफ सॉइल विल बी नोटेड डाउन, ठीक है। वो आपकी हेल्पफुल करेंगे आपको रूट को फाइनल करने के लिए भी। बेसिकली हमें इसको फाइनल करना कि रूट आपने जो फाइनल किया है उसमें सॉइल की कंडीशन कैसी है। देन इज रोड मटेरियल सर्वे। तो रोड मटेरियल सर्वे मींस कैसा आपके पास मटेरियल वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ लोकल मटेरियल विच इज इजीली अवेलेबल है, ठीक है। और कौन सा आपको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए लेके आना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कौन सा करोगे, दैट विल बी आल्सो नोटेड डाउन इन दिस रोड मटेरियल सर्वे में। देन इज ट्रैफिक सर्वे। ट्रैफिक सर्वे इज बेसिकली आपको ट्रैफिक की कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि पॉपुलेशन, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन कितना ट्रैफिक वहां पे चलता है डेली वाइज, पीक वॉल्यूम कितनी रहती है मैक्सिमम। पीक वॉल्यूम मींस आपके जो नॉर्मल टाइमिंग रहते हैं जैसे 7 to 9 ऑफिस एंड स्कूल एंड कॉलेजेस का टाइम होता है ओपनिंग का, ठीक है। देन क्लोजिंग टाइम जैसे आपका 4 to 6 या 7 o'clock तक, 5 to 7 o'clock तक आपका जो पीक आवर इवनिंग में रहता है जब आपके ऑफ होते हैं कॉलेजेस स्कूल्स एंड ऑफिस, ठीक है। तो इन दिस पीक वॉल्यूम में आपके पास कितना ट्रैफिक वहां पे चलता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी रोड की विड्थ डिसाइड करोगे, लेन डिसाइड करोगे कितनी आपको रखनी है वहां पे, दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट, ठीक है। सो देन उसके बाद नेचर ऑफ ट्रैफिक कैसा है, मींस वहां पे मिक्स ट्रैफिक है या आपका जो एक पर्टिकुलर ट्रैफिक वहां पे चलता है। मिक्स ट्रैफिक मींस टू व्हीलर भी चल रहे हैं, ठीक है, हैवी व्हीकल भी चल रहे हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स भी चल रहे हैं, सो दैट इज काइंड ऑफ अ मिक्स ट्रैफिक। उसके बेसिस पे आप रोड के मटेरियल को डिसाइड करते हो कि कैसे आपको रोड के मटेरियल बनाना है, ठीक है। और कौन कौन से वेरियस आपको फीचर्स डालने पड़ेंगे, जैसे आपको साइकिल, अगर वहां पे ज्यादा साइकिलिस्ट हैं तो आपको साइकिल पाथ बनाना पड़ेगा। पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक अगर ज्यादा है तो वहां को पेडेस्ट्रियन एक फुटपाथ बनाना पड़ेगा, so that we can easily note it down कि वहां पे ट्रैफिक कैसा है। then type of vehicle used using the road, ठीक है। वही सेम चीज की कैसे व्हीकल वहां पे मोस्टली ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रक्स कार मींस हैवी ट्रांसपोर्ट ज्यादा जा रहा है, या लाइट मोटर व्हीकल है मींस अगर विद इन सिटी है तो आपके लाइट मोटर व्हीकल ज्यादा चलेंगे। अगर एक नेशनल हाईवे बना रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें ट्रक्स वगैरह हैवी व्हीकल लाइक बसेस आल्सो दैट विल आल्सो ट्रेवल। देन उसके बाद ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी मींस अगर आप सपोज किसी चंडीगढ़ में कोई रोड बना रहे हैं तो आप उनको कौन से इंटरलिंक सिटीज हैं या इंटरलिंक स्टेट्स कौन कौन सी हैं। जैसे अगर आपको सपोज मोहाली टू अगर आपको पंचकुला जाना है, ठीक है, तो आपको कौन सा रूट आप फाइनलाइज करोगे। सो दैट मींस ओरिजिन टू डेस्टिनेशन यू विल बी चेकिंग आउट कि कौन सा आपका ओरिजिन और कौन सा आपका डेस्टिनेशन पॉइंट वो ट्रेवल करते हैं। उसके बाद लास्ट में आपके पास है लोकेशन सर्वे। तो लोकेशन सर्वे इट बेसिकली सेज अब आपका जो रूट फाइनल हो चुका है प्रीलिमिनरी में, सो इन द प्रीलिमिनरी सर्वे आफ्टर योर रूट इज फाइनलाइज, उसके बाद आपके पास आता है लोकेशन सर्वे। तो जो एक रूट आपने फाइनल किया उसके ऊपर ही आपको अब सर्वे करना है। सो इट इंक्लूड द डिटेल सर्वे कैरिड अलोंग द फाइनलाइज्ड रूट, जो आपने रूट फाइनल किया था उसी के अलोंग आप रूट को फाइनल उसी के अलोंग आप सर्वे करोगे after preliminary survey by transferring the proposed center line to the actual ground and collecting other related information is termed as location survey। तो अब आपने जो एक सेंटर लाइन बनाई है, डिजाइन की है विद द हेल्प ऑफ द प्रीलिमिनरी सर्वे, अब आपको उसको लोकेट करना है इन द पाथ पे, आपके जो साइड पे आप उसको लोकेट करोगे। लोकेट करने के बाद जो जो भी आपके पास डिफिकल्टीज या ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उनको आप काउंटर करोगे, उनको निकालोगे, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करोगे। अगर कोई सपोज वहां पे कंस्ट्रक्शंस हो रखी हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उनको आप डिमोलिश करने के लिए नोटिस लेके आओगे, ठीक है, करना चाहोगे, ठीक है। सो दिस और प्रायर नोटिसेस विल बी गिवन टू इट, ठीक है, और आपका यहाँ पे फाइनलाइज काम करना होना स्टार्ट हो सकता है। सो दिस इज द लास्ट सर्वे व्हिच वी हैव, और आफ्टर दिस सर्वे इज डन आपकी जो अलाइनमेंट है वो फाइनल हो चुकी है। इसके बाद इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट फॉर अस टू चेंज अवर अलाइनमेंट। तो जो भी आपको सर्वे के बेसिस पे अब आपको रूट जो फाइनल करना है तो वो इस लोकेशन सर्वे से पहले पहले आप रूट को फाइनल अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो। सो बट अगर आपका ये लोकेशन सर्वे फाइनल हो चुका है उसके बाद it is quite difficult for us and also uneconomical for our department to conduct another survey location survey for any another route के लिए another location survey करना difficult है because time consuming है, cost ज्यादा लग जाएगी, ठीक है। so that will be a difficulty। so जो भी route आपको फाइनल करना है वो आपको एक मैंडेटरी एक सारी प्रिकॉशंस के साथ सभी पॉइंट को माइंड में रख के करना है। so then objective of location survey are, so what kind of objective it has, it says to translate the center line of road finalized in a drawing to the ground। तो जो भी आपने जो सेंटर लाइन ऑलरेडी बनाई है प्रीमियम सर्वे में उसको आपको ट्रांसलेट कर देना, मींस उसको वहां पे फाइनलाइज कर देना है, साइड के ऊपर जो आपने ड्राइंग पे बनाई थी उसको ग्राउंड पे ट्रांसफर कर देना है।
Then is to carry out the detailed survey necessary for preparing key maps and various drawings and plan. तो जो भी आपके पास डिटेल सर्वे में आप निकालोगे, उसमें जो भी आपको की मैक्स बनाने के लिए, मैप बनाने के लिए जो भी आपको डेटा चाहिए, नेसेसरी डेटा चाहिए, वो आप यहाँ से ले सकते हो. देन टू प्रिपेयर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट. अब यहाँ पे आपकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी. वहां पे आपने एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकाली थी, बट इसमें आपकी एक्चुअल कॉस्ट इंक्लूडिंग एक माइनर टू माइनर कॉस्ट है, मींस अर्थवर्क से लेके आपकी फाइनलाइजिंग ऑफ रूट तक कितनी आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है, कितनी किसकी कॉस्ट लगेगी डिपेंडिंग ऑन द पीडब्ल्यू रेट्स के ऊपर. देन इज टू फाइनलाइज कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स आप निकालोगे उस प्रोजेक्ट्स की, क्या कह रहे हैं उसको फाइनलाइज करोगे. ठीक है, इसके बाद आपके टेंडर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे. आफ्टर दिस सर्वे इज डन, योर टेंडर विल बी ओपन टू एवरीवन. देन वी हैव स्टेजेस ऑफ लोकेशन सर्वे. तो स्टेजेस आपकी कौन कौन सी है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्विकली. सो इट सेज लोकेशन, लोकेटिंग लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड. तो जो रोड आप बना रहे हो उसका लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल आपको बना देना है, लोकेट कर देना साइड के ऊपर, उसको मार्क कर देना. ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड जो भी आप करेगा, मींस आपने विड्थ कितनी रखी है, डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सभी आप मार्क कर दोगे. देन इज सरफेस ड्रेनेज इन्वेस्टिगेशन. तो जो भी आपकी सरफेस की ड्रेनेज है उसको इन्वेस्टिगेट करोगे, कहाँ पे आपकी सीवर लाइन ऑलरेडी पड़ रखी है. ठीक है, अगर रेनफॉल हो रही है तो उसका पानी कहाँ जाता है, ऑलरेडी वहां पे स्टॉर्म लाइन पड़ी हुई है, नहीं पड़ी है. सो अगर नहीं है तो दैट विल बी कंस्ट्रक्टिंग ऑफ फर्स्ट. ठीक है, सीवर लाइन के साथ साथ आप स्टॉर्म वाटर लाइन भी डालोगे. ठीक है, सो दैट विल बी ड्रेनेज पास, बिकॉज आपकी रोड की सक्सेसफुल होने में आपका ड्रेनेज भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. So that we also need to check it out whether it is suitable for road or not. Then is soil investigation in detail to determine the type of nature of soil in area. So soil investigation आप करोगे, ठीक है, डिटेल में, to determine the type of and nature of soil. जो भी आपकी टाइप और नेचर ऑफ सॉइल है वो आप चेक आउट करोगे. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेस्ट्स के. ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको स्टेबलाइजेशन के कौन सा मेथड अडॉप्ट करोगे, कॉस्ट कितनी लगेगी वो भी हम चेक करेंगे. देन इज रोड मटेरियल इन्वेस्टिगेशन. तो जो भी आपके पास मटेरियल रहेगा, ठीक है, वेदर एग्रीगेट्स, ग्रेवल और व्हाटएवर काइंड ऑफ मटेरियल व्हिच यू आर यूजिंग, उसकी इन्वेस्टिगेशन करोगे. देन डिटेल लोकेशन ऑफ टॉपोग्राफिकल फीचर्स. ठीक है, जो भी आपके पास टॉपोग्राफिकल फीचर्स हैं उनकी डिटेल लोकेशन, इस एग्जैक्ट लोकेशन उनकी कौन सी है, ठीक है, उसकी मार्किंग, उसकी अगर उसको आपको डिमोलिश करना है, ठीक है, टॉपिकल फीचर में जैसे आपके कोई हिली एरिया वहां पे आपको टनल बनानी है या उस हिल को कट करना है, उसकी सारी लोकेशन कहाँ से कट करोगे. देन राइट ऑफ वे इन्वेस्टिगेशन अबाउट फिक्सिंग द सेंटर लाइन. उसके बाद आपका जो राइट ऑफ वे रहेगा जो आपने एक्वायर करना है, ठीक है, उसकी सेंटर लाइन आप फिक्स करोगे. सो दिस ऑल द स्टेजेस व्हिच वी नीड टू कंडक्ट इन अ लोकेशन सर्वे. सो दैट्स इट फॉर आवर रोड सर्वे. तो रोड को बनाने से पहले ये सारे 3 सर्विस वी नीड टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है, आपको करने पड़ेंगे. सो व्हेनेवर इट इज डन, उसके बाद आप अपने कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच.